गाडे सर, भारती सर जॉईन झाले नाहीत का? हॅलो हॅलो. हा सर. नाही अंकित, भारती सर जॉईन झाले नाहीत का? होतील मी फोन केलाय त्यांना. बर. हॅलो. गाडे सर, भारती सर जॉईन झालेले नाहीत का? दिसत नाहीत भारती सर जॉईन झालेले. बघतोय सर. नाही अजून. हॅलो देशमुख मॅडम. नमस्कार सर. नमस्ते. हा, बोला. आवाज येतोय ना तुम्हाला? आवाज येतोय का? हो हो, येतोय. माझा आवाज येतोय? हा, येतोय. भारतीय योग संस्थान दिसत नाही. नमस्ते. दिल्लीचे जॉईन झाले.
5 मिनिटात सुरू करूया. 2च मिनिटांमध्ये प्राचार्य जॉईन होत आहेत. अच्छा. ठीक आहे ना. फुल स्क्रीन कर ना. चव्हाण तुझा व्हिडिओ बंद कर चव्हाण. All the participants are requested to mute their voice. हॅलो भारती सर. हॅलो. हा सर. हा सुरू करायचं. हो हो सुरू करायला हरकत. ओके कार्यक्रम पुढे जाईल तसे लोक जॉईन होत राहतील. चालू करू. ओके 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 ओके. A very good morning to all the participants. Today, MSc Mandals Art, Commerce and Science College, Killi Dharu, District Bid, Maharashtra State, on behalf of NCC Department, a national webinar is organized on importance of yoga. This program is related with the International Day of Yoga, which is going on 21st of June 2022. As per the instructions laid down by the University Grants Commission, New Delhi, we have chalked out 3 programs. And among these 3 programs, this is the first program. And on 9th May, there will be the second program, and third program will be held on 21st June 2022. So for this occasion, we have the chief guest of this occasion. So Bhagyavati Sanjeevani Ashok Deshmukh, who belongs to Pimpri, Pune, and she is a member of Maharashtra State Committee, Bharatiya Yoga Sansthan, New Delhi. Also, I welcome to the President of Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Prakash Dada Solanke Sahib, Secretary Honorable Satish Babu Chauhan, Honorable Jaisingh Bhaiya Solanke, who is the Chief of the College Development Committee, Art, Commerce and Science College, Killi Dharu. I also welcome to Honorable Lobaji Chauhan Sahib, Honorable Ajay Singh Dikhat, Honorable Ram Singare Sahib, Dr. Ram Singare Sahib, and Honorable Indrajit Jadhav sir. I also welcome our beloved principal,
Professor Dr. Deepak Bharti sir, Vice Principal Mr. Mahadev Jogde sir, Supervisor of our college Siddheshwar Kale sir, all the participants participated for this activity from Maharashtra state as well as from all the states of this country. I once again welcome to all the participants. Before to start this activity, I will just introduce today's chief guest, Sanjeevani Ashok Deshmukh. She is a member of Bharatiya Yoga Sansthan, New Delhi, Maharashtra State Committee. I would like to mention here, she has completed her MA in Marathi after her wedding, and she has completed her MA at the age of 54 years. Just now, her age is 60 years, and before last 6 years she has completed her MA. मराठीमध्ये असं जर म्हणायचं जर झालं तर एखाद्याला एखादं कार्य करायचं असेल तर त्याला वयाची मर्यादा नसते. अगदी त्याचप्रमाणे आजच्या ज्या चीफ गेस्ट आहेत संजीवनी अशोकराव देशमुख यांनी हे काम केलेलं आहे. त्यांचे मिस्टर आर्मी ऑफिसर आहेत. देशमुख मॅडम गेल्या 23 वर्षापासून योग संस्थांमध्ये अविरतपणे कार्य करत आहेत. अगदी एक अभिमानाने सांगायची बाब म्हणजे त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये फिरून योगा आणि योगाचं महत्व, योगा केल्यानंतर त्याचा फायदा काय होतो याचं महत्व सांगत आहेत. मॅडम, मी आपलं महाविद्यालयाच्या वतीने पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो आणि आपणास विनंती करतो की या कार्यक्रमाला आपण मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. नमस्कार. भारतीय योग संस्थान की मैं एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे संस्थान के संस्थापक श्री श्रद्धेय प्रकाश लाल जी 1967 में इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की है. मैं हिंदी में ही बोलने वाली हूँ क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारा सब प्रोग्राम हिंदी में ही चलता है. भारतीय योग संस्थान का जन्म 1967 में हुआ. मानव लेकर श्री प्रकाशलाल जी ने इस संस्थान की स्थापना की है. हर एक मानव को स्वास्थ्य मिले और इसके लिए उन्होंने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है. यह 23 प्रांतों में और 4000 से अधिक केंद्र खोलकर सब कार्यकर्ता इसमें कार्यरत हैं. यहाँ पर निशुल्क सेवा दी जाती है. योग निशुल्क सिखाया जाता है और अपने पास कुछ भी न रखते हुए इसका फल की अपेक्षा न कर सभी कार्यकर्ता निशुल्क भाव से सेवा करते हैं और जो भी हमें मिलता है समाज में बांट दिया जाता है. 4000 से अधिक केंद्र, वो भी निशुल्क, इस आजकल की परिस्थिति में बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं. भारत में और भारत के बाहर भी 10 देशों में यह कार्य प्रारंभ हुआ है. जैसे कि योग मानव मात्र के लिए एक बहुत ही अपने
स्वास्थ्य के लिए और संपूर्ण समाज के लिए एक अच्छा माध्यम है। योग हमारे संस्थान के कार्यकर्ता और हमारे संस्थापक ने योग का मार्ग अपनाकर यह काम समाज के लिए, समाज हित के लिए करना प्रारंभ किया है। और अब तक ये 56 वर्षों से, गत 56 वर्षों से यह कार्य हो रहा है। तो हमारा भारतीय योग संस्थान आज वर्तमान में हमारे प्रधान है श्री देसराज जी गुप्ता और मंत्री है श्री जवाहरलाल जी, ललित गुप्ता जी। और यह कार्य संपूर्ण विदेशों में भी फैलाने की हम कोशिश करेंगे और निस्वार्थ भाव से लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए, लोगों का दुख दर्द मिटाने के लिए यह सेवा हम करते रहेंगे। भारतीय योग संस्थान के सभी साधक और कार्यकर्ता, अधिकारी इस सेवा में रत हैं। हम निशुल्क कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बना रहे हैं। और इस महान कार्य में आप सबका सहकार्य हो, योगदान हो। इस यज्ञ में सब समाज के हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए एक साथ लेकर हम चल रहे हैं। आज यहाँ एमएसपी मंडल किले थरूर के कॉलेज, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कॉलेज में आज हमें आमंत्रित करके और हमें यह सेवा करने का एक साधन प्राप्त किया है। इसके लिए हम मैं इन सब आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रदर्शित करती हूँ। तो हम चलते हैं, योग क्या है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा से परमात्मा के साथ हमें मिलाती है, हमारे शरीर को मन के साथ जोड़कर हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम योगासन करता है। यही क्रिया करने से हमारी हड्डियों में जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन नामक द्रव्य होता है, वह निष्कासित हो जाता है आसनों के अभ्यास से और हड्डियां लचीली बनती है, मांसपेशियां व्यवस्थित और स्वस्थ होती है। विभिन्न मुद्राओं से, आसनों के विभिन्न मुद्राओं से शरीर में शक्ति प्रदान होती है और संपूर्ण शरीर का रक्त भ्रमण अच्छी तरह से होता है। हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होता है और ये जो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो इसमें सजगता है, हिलना डुलना है और श्वास प्रश्वास की क्रिया है। इसकी वजह से यह कार्य करता है और नियंत्रित एवं इसके कार्य को नियंत्रित एवं सम करने के लिए आसनों का बहुत बड़ा फायदा होता है। श्वास दीर्घ और सूक्ष्म करने से हमारे शरीर के सभी प्रणालियों में, संस्थान में पूरा प्रभावित होकर सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। आसन का स्नायु मंडल पर और पूरे शरीर पर इतनी अच्छी तरह से प्रभाव होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह सुचारू रूप से और सुनियमित ढंग से चलता है। आसनों से
योगासन से हमारे संपूर्ण शरीर की प्रणालियां एकदम स्वस्थ होती है और हमारा मन और हमारा तन दोनों स्वस्थ मन स्वस्थ तन शरीर हो तो स्वस्थ मन अपने आप मिलता है। मानव को चाहिए क्या? स्वस्थ शरीर हो और स्वस्थ मन हो तो हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे शरीर के स्वस्थ होने का योग एक ऐसा माध्यम है कि उसके साथ हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए योगासन करने से हमें प्रफुल्लता आती है, हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। हमारे दिन भर में जो भी हम काम करते हैं वो शक्ति हमें अच्छी तरह से मिलती है। रोज सुबह जो भी हम करते हैं काम, तो सुबह उठने के बाद 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालकर अगर हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर को इसका बहुत अच्छे से फायदा मिलता है और हमारा संपूर्ण जीवन करने के लिए यह हमें मदद करता है। आसनों से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। इसीलिए योगासन करने से हमें संपूर्ण हमारे व्यवहार पर, उठने पर, बैठने पर एक नियमितता आती है। इसके लिए हमें योगाभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। या तो आप कोई भी व्यायाम करें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि शरीर को बहुत आवश्यकता है कि वो हमेशा कार्यरत रहे और वो कार्यरत रहने के लिए योगाभ्यास हमें मदद करता है। हमारा संपूर्ण शरीर सुचारू रूप से चले, इसके लिए नित्य योगाभ्यास, अगर हम नित्य योगाभ्यास करते हैं तो उसका फायदा अधिक से अधिक होता है। तो हमें यह जरूरी करना है हमारे पूरे शरीर के लिए और मन के लिए, बुद्धि के लिए हमें यह जरूरी है। जैसे बच्चों में बचपन से यह आदत हो तो वह आगे देश सेवा के लिए या अपने जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही अच्छा बन जाएंगे। और हर बच्चे को हर घर में यह योगाभ्यास पहुंचना चाहिए। हर घर में हर व्यक्ति तक योग का महत्व पहुंचना चाहिए। इसके लिए भारतीय योग संस्थान हमेशा इस कार्य में रत है। चलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए आसनों की तरफ, मेरी यह होती है पवित्रा जाधव, ये आपको कुछ आसन करके बताएंगे। आसन करने से पहले ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र, अर्थ सहित पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में शुरू करते हैं एक साथ। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो
धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। एड़ी पंजे मिलाएं। आसन पर उठ के खड़े हो जाएं। हमें यहाँ पर कुछ गिने चुने आसन लिए हैं क्योंकि वक्त की पाबंदी है, तो हम आसन शुरू करते हैं। ताड़ासन, अंगूठे मिलाए, एड़ियां मिलाए। जो भी हमारे साथ आसन करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। सीधे खड़े हो, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों भुजाओं को आगे लेकर उंगलियों में से उंगलियों फंसाए हथेलियों की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां पलट कर रखें। श्वास भरते हुए एड़ी और दोनों भुजाएं एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ताड़ासन में संपूर्ण शरीर ताड़ वृक्ष की तरह बनता है। श्वास से संपूर्ण शरीर बन जाता है, हड्डियां लचीली बनती है। आ जाए धीरे धीरे वापस विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास सामान्य। ताड़ासन करने से संपूर्ण हड्डियां खींचने से संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। हड्डियां लचीली बनने में मदद मिलती है। दूसरा आसन करते हैं बैठे स्थिति में, योग मुद्रा। पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरे और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर ताने पीठ सहित। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। माथा जमीन को लगाएं, दोनों हाथ पीछे की ओर तने हुए। माथा जमीन पर लगने से भावनाओं में परिवर्तन होता है। पेट के सभी अवयव प्रभाव में आने से सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। रीढ़ लचीली बनती है। रीढ़ आगे की ओर सीधी होने से रीढ़ लचीली होती है। रीढ़ में रक्त प्रसार सुचारू रूप से होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। हर आसन के बाद हम कुछ क्षण
विश्राम करने से वापस हमें शक्ति प्रदान होती है। आगे का आसन करते हैं कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, हथेलियां पृथ्वी पर, धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की ओर लटकाएं। पेट के सभी अवयव प्रभाव में आने से निष्कासन सहज। नाभि के आजू बाजू का मैल उखड़ता है। कंधे, कलाइयां, गर्दन पीछे की ओर झुकने से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस कोणासन बहुत ही अच्छा आसन है। रोज इसे करने से संपूर्ण शरीर और अधिक तरह से कार्य करता है और सभी प्रणालियां स्वस्थ होने में इसकी मदद होती है। दूसरा आसन करते हैं गोमुखासन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिना पैर घुटनों में मोड़कर दाहिने पैर के एड़ी पर बैठ जाएं। बायां पैर घुटनों में मोड़कर इस तरह रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। पीछे से बायां हाथ ऊपर उठाकर दाहिने हाथ से बाएं पैर के एक दूसरे में फंसाकर अधिक से अधिक ताने। कमर गर्दन सीधी, ये उल्टी और दिखाया है इसलिए क्योंकि ये पीछे की ओर ऐसे किया जाता है और आगे की ओर एड़ी पे घुटने के ऊपर घुटना और एड़ी नीचे की ओर। यह गोमुखासन है। इसकी आकृति दशरथ गोमुख के जैसे होती है, इसीलिए इसे गोमुखासन कहते हैं। यही क्रिया बाईं ओर से। बायां पैर घुटनों में मोड़कर दाई जंघा के नीचे रखें। दाई जंघा के नीचे से लेकर एड़ी पर बैठना है और बायां पैर घुटने के ऊपर घुटना है, इस तरह रखना है। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर पीछे से बाएं हाथ से एक दूसरे में फंसाकर दोनों हथेलियां एक दूसरे में फंसाए रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। गोमुखासन करने से हमारा शरीर स्थिर बनता है। भुजाएं, कंधे सब प्रभावित होने से जो कमर में दर्द होता है ज्यादा और नीचे झुकने से दर्द होने में मदद मिलती है। आ जाए धीरे धीरे वापस। आगे का आसन करते हैं शशकासन, वज्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं दाईं ओर रखते हुए आ जाए वज्रासन में। आगे से अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन करने से पैरों की तरफ जो गंदा खून जाता है उसे हृदय की ओर ले जाने में मदद मिलती है। जंघाओं के ऊपर पिंडलियां दबने से पिंडलियों में जो दर्द होता है वो ठीक होता है। लंबी दूरी चल के आने के बाद जो भी हमें थकान आती है, वज्रासन में बैठने से ठीक होती है। शरीर वज्र की तरह बनता है। यह आसन हम
भूख अच्छी लगती है और खाना खाने के बाद करने से पाचन अच्छा बनता है। वज्रासन हम कभी भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, वार्तालाप करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए। यह आसन हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। इसके यह आसन करने से हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और जो भी पैरों की नसों में दर्द है वो सब ठीक होता है। आगे करते हैं शशक आसन। शशक यानी खरगोश। तो खरगोश के जैसे शरीर की आकृति बनानी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, पीठ सहित ताने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके, माथा जमीन को लगाएं, रीढ़ सीधी। माथा जमीन पर लगने से भावनाओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी माँ की सहनशीलता, क्षमाशीलता हम में आती है, क्रोध शांत होता है। रीढ़ सीधी होने से रीढ़ में प्रचुर मात्रा में रक्त का संचालन होता है। पेट के सभी अवयव दबने से पेट के सभी रोग दूर होने में इसकी मदद होती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं तानते हुए ऊपर की ओर आए, वापस पीठ सहित ऊपर की ओर ताने, दोनों भुजाएं आजू बाजू से लेते हुए आ जाए वज्रासन में। आगे का आसन है भुजंगासन, जो लेट कर किया जाता है। पीठ के बल आ जाए, ओटावृत। पेट के बल आ जाए, भुजंगासन। भुजंग का मतलब होता है नाक। श्वास भरे, एड़ी पंजे मिलाए, आए जोड़ मारे। दोनों भुजाएं चेहरे के आजू बाजू, हथेलियां चेहरों के आजू बाजू। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। हाथों पर भार ना दें। यह है भुजंगासन। भुजंगासन करने से गर्दन प्रभावित होती है, गर्दन का आजू बाजू की मांसपेशियां प्रभावित होती है। ऊपर उठने से धड़, छाती, फेफड़े सभी प्रभावित होते हैं। रीढ़ लचीली बनती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दाहिनी करवट का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं, उजवा हाथ हो। क्या करते हैं? पाठी वाली साइड, बस बस। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, हथेली का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। पीठ के बल का आसन करते हैं चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़कर, घुटनों में मोड़कर नितंब की ओर ले आए। थोड़ा सा अंतर लें। दोनों भुजाएं कोहनी में मोड़कर कंधे के नीचे रखें। पहले माथा जमीन को लगाएं और धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। ये है चक्रासन।
चक्रासन करने से रीढ़ लचीली बनती है। आ जाए धीरे धीरे वापस। और रीढ़ में प्रचुर मात्रा में रक्त का संचार होने से जो भी रीढ़ के दर्द है, उसमें कमर दर्द है, इसमें हमें राहत मिलती है। सेतु बंधासन, दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, हथेली का रुख आसमान की ओर, विश्राम की अवस्था है यह। सेतु बंधासन। श्वास भरते हुए दोनों पैर घुटनों में मोड़कर नितंब की ओर ले आए। नितंब की ओर ले सेतु बंधासन करना। ये अभी नहीं है, ज्यादा नहीं सिखाया, 1 हफ्ते से मैं सिखा रही हूँ, इसीलिए उसको थोड़ा आसन नहीं समझ में आते हैं। दोनों हाथों कोई से बात नहीं मैडम। दोनों पैर के टखने पकड़े, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। जो लाभ चक्रासन में मिलते हैं, लेकिन ज्यादा करके चक्रासन बड़े लोगों को नहीं होता है, इसीलिए यह सेतु बंधासन करने से चक्रासन के सभी लाभ इसमें मिलते हैं। आ जाए धीरे धीरे वापस। विश्राम, दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर निकाल, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, हथेली का रुख आसमान की ओर। यह शवासन है। दोनों हाथ आजू बाजू। शवासन देखने में बहुत ही सीधा आसन है, लेकिन बहुत ही कठिन है। आंखें बंद करके संपूर्ण शरीर का अवलोकन करना है। अभी तक हमने जो भी आसन किए, कैसे किए, इसके बारे में सोचना है। हमें कहाँ दर्द हुआ, क्या इससे हमारे शरीर पर प्रभाव हुआ, इसका अवलोकन करना है। मन की आंखों से पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक एक एक अवयव को निहारते हुए ढीला छोड़ना है। शवासन सभी आसनों का राजा है। देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन हमारा जो इधर उधर भागते रहता है, उसको स्थिर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। जो दिन भर में तनाव आता है काम करने के बाद, और कुछ विचारों की वजह से हम थक जाते हैं ज्यादा, तो शवासन करने से, जब भी हम शवासन करेंगे तो हमें संपूर्ण शरीर में रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होने लगता है, क्योंकि हम संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। कहीं भी तनाव नहीं है, संपूर्ण शरीर तनाव रहित होता है शवासन में। इसके लिए हमें शवासन करने से मानसिक तनाव दूर होने में मदद मिलती है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट पे होके त्यावजन आसन पर उठ के बैठे। पद्मासन लगाएं। मानव मात्र की देन है हंसी, लेकिन हम हंसना भूल गए हैं। हम हमेशा टेंशन और टेंशन में रहते हैं। जो हमें यह ईश्वर ने जो देन दी है हंसी की, हम उसे भूल जाते हैं, और हमें हंसना कितना जरूरी है यह हमें योग करने के बाद मालूम पड़ता है। योगासन में एक यौगिक हंसी होती है, जो ठहाके लगाकर हंसने के लिए हम कहते हैं। तो हम करेंगे हंसी। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की ओर से लेते हुए ऊपर ले जाएं और मधुर स्वर में हंसते रहो।
सभी कर सकते हैं, सब एक साथ शुरू करें। शान, देखो हंसना कितना हमारे लिए आवश्यक है, हम यही भूल जाते हैं। और दिन भर में हंसने से सभी प्रणालियां शरीर की स्वस्थ होती है, रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होता है, हमारे चेहरे पर हमारे मुस्कान से तनाव दूर होता है और सुंदर दिखता है, शरीर और आकर्षक बनता है। इसीलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुद हंसो और औरों को भी हंसाओ। अभी हम अगला आगे की ओर चलते हैं और प्राणायाम के बारे में सोचते हैं। प्राणायाम मतलब प्राणों का प्राण का व्यायाम। प्राण मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, दीर्घ श्वास की जो हम श्वास अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, इसकी प्रक्रिया को एक सहजता से और सुलभ ढंग से लेना, उसकी वजह से हमें हमारे शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। आसनों से भी ज्यादा फायदा प्राणायाम से होता है, लेकिन उसे ध्यान और लगन से करना है। हमें आपका ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ यहाँ पर एक ही प्राणायाम दिखाऊंगी जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि कम समय में हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यह भ्रामरी प्राणायाम लिया है कि जो विद्यार्थी देख रहे हैं सभी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम मतलब भ्रमर के जैसे गुंजन करना। भ्रमर मतलब भौरा, भूंगा, उसके जैसे नाक से आवाज निकालनी है। तो हम शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन, दोनों हथेलियां खोल दे, अंगूठे कानों में, अंगूठे के बाजू की 2 उंगलियां आंखों पर, अनामिका नाक के नीचे, कनिष्ठिका होठों पर, होठों के नीचे, यह स्थिति है। श्वास भरे, कंठ तक श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए रुके कुछ क्षण और भौरे जैसा गुंजन करना प्रारंभ करें। वापस श्वास भरे, कुछ क्षण रुके और भौरे जैसा गुंजन प्रारंभ करें। एक बार वापस श्वास भरे, कुछ क्षण रुके और भौरे जैसा गुंजन प्रारंभ करें। दोनों अंगूठे कानों में से निकालें और धीरे धीरे वापस आ जाए। आंखें कोमलता से बंद ही रखें। इस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उठती है, मस्तिष्क के सभी अवयवों की मालिश होती है, हमारी जो हम दिन भर में जो भी पढ़ाई करते हैं बच्चे, वह उनकी याददाश्त बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमें हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है।
इसी के साथ हम यहाँ पर प्राणायाम खत्म करते हैं और प्रार्थना और शांति पाठ लेते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, श्वासों को सामान्य कर ले। प्रार्थना और शांति पाठ का जितना महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में, वह बहुत ही जरूरी है। हर जगह पर, हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करने से हमारे मन की सभी लहरियां शांत होती है, विचारों में परिवर्तन होता है। शुरू करते हैं प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति रन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वै देव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण ऐसी शांत अवस्था में बैठे रहे। दोनों हाथों को, हथेलियों को एक दूसरे पर मले, पवित्र करो, अच्छे से मले, घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर धारण करें। इसी के साथ आज की योगाभ्यास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हाँ, आप सभी को कैसा लगा? जो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हमें पूछ सकते हैं, मराठी में भी पूछेंगे तो भी चलेगा।
सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि अगर किसी हमारे- को कोई इसके बारे में कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे दिल्ली प्रांत से श्री डिंगरा जी आए हुए हैं। जिंगरा जी साहब प्रकट हो जाइए। सबको नमस्कार। मैं भारतीय योग संस्थान से सुरेंद्र कुमार ढींगरा आपकी सेवा में। थैंक यू सर, थैंक यू। और दीपा चंदना ने भी हमारी कार्यकारिणी को भी यहाँ पे। दीपा जी, दीपा जी बड़े प्लीज प्रकट हो जाइए। म्यूट करें। ओके, ठीक है, नहीं हो। ओके। और बहुत सारे हमारे साधक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी आप किसी को क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं। मराठी में पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है? नहीं, शायद किसका कोई सवाल नहीं दिख रहा है मैडम। अच्छा, तो हमारे ढींगरा जी बात करेंगे थोड़ा सा। बोलिए सर। ओके। आपने बहुत कुछ बता दिया विस्तार से। योग तो सबको मालूम है, इस समय पूरे विश्व में इसको अधिक से अधिक 200 से अधिक देशों ने मान्यता दी हुई है। शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत सी प्रणालियां हैं, उपलब्ध हैं। कोई जिम कर रहा है, कोई एरोबिक्स, कोई दौड़ रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, परंतु उनमें और योग में बहुत भिन्नता है। उनसे आप किसी भी एक प्रकार का ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रणालियां बहुत खर्चीली हैं, कुछ में एयर कंडीशन भी चाहिए, कहीं प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता है, कहीं पर नॉन वेज खाने को बताया जाता है। परंतु योग एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें बहुत ही सिंपलिसिटी है, बहुत ही हर प्रकार से मितव्ययी है, कोई खर्चीला नहीं है। छोटा सा स्थान चाहिए, कोई एयर कंडीशन नहीं चाहिए। कहीं पर भी आप रास्ते में भी इसको अगर जा रहे हैं, थोड़ी सी जगह में आप इसको अपनाकर पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योग का सबसे बड़ा जो लाभ है वह यह हमें नित्य प्रति उठना, बैठना, खाना पीना, बात करना, हमारा सब कुछ संयम किस प्रकार से हो, हमको वह सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि योग हमें आंतरिक शुद्धि प्रदान करता है, योग हमें सौष्ठव बनाता है, योग हमारे टेंशन्स दूर करता है, बहुत कुछ करता है। परंतु इसके अलावा योग से जुड़कर हम अपना नित्य प्रति का जो भी हमारे अंदर व्यसन्स हैं, हमारे में कमियां हैं, हम उनको बहुत आसानी से दूर करके और योग अपनाकर बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। ये देखने में कहीं अधिक बदलाव ना भी लाए, परंतु आंतरिक शुद्धि इसका मुख्य है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हों, आनंदमय जीवन जिएं एवं बीमारियों पर होने वाले अनावश्यक धन एवं शक्ति का अपव्यय ना हो, तो नित्य योग करें। यह तो सभी ने, पूरे जग ने माना है कि योग महान, इसे अपनाकर बढ़ाएं शान, क्योंकि योग है हमारी एक संस्कृति महान। धन्यवाद। सर, थैंक यू जिंगरा साहब। आपने बहुत, जैसा 2020 क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह से आपने कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमें आपने मार्गदर्शन किया। हमारे प्रिंसिपल साहब जी से मैं गुजारिश करता हूं वो प्रकट हो जाइए। भारती सर, वीडियो ऑन करा। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट।
I request our beloved principal, Professor Deepak Bharti, to give his remark about this activity. Thank you, sir. Very good morning, all of you. सुप्रभात. आज के रिसोर्स पर्सन जो है मिसेस संजीवनी देशमुख मैडम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में जो योग का महत्व है वो अपने विचारों से और अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेके कृति दिखाकर विद प्रैक्टिकल ये बहुत ही अच्छे से हमारे सभी जो हमारे साथी है, हमारे टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे स्टूडेंट्स है या जो भी ऑनलाइन इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए योग प्रेमी है, उन सभी के लिए मैडम का जो आज का मार्गदर्शन है मुझे लगता है बहुत ही सफल रहा है। दूसरी बात यह है कि मैडम ने ये बताया है कि योग केवल फिजिकल चेंजेस नहीं लाता है मनुष्य के जीवन में, तो दूसरी जो बात उन्होंने बताई है कि मानसिक और ज्यादातर भावनिक जो चेंजेस है वो मेरे ख्याल से मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखती है। क्योंकि मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था, मैडम के साथ में उनके जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक बहुत ही कम उम्र की स्टूडेंट्स थी और एक अपोजिट में और एक दूसरी स्टूडेंट्स है। उनकी अगर हम उम्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि योग मनुष्य को अपनी आयु कैसे भुला देता है। मुझे लगता है बहुत ही इंस्पायरिंग जो एक बात है उन्होंने अपने कृति से सभी सहभागियों को दिखाई है। और आखिर में सुरेंद्र कुमार धिंगरा जी ने दिल्ली से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बहुत ही कम समय में मुझे लगता है योग का जो महत्व है, हमें सबको मालूम है कि जून महीने में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाते हैं, तो उसी के तहत हम अप्रैल में जून ये कंटिन्यूसली 3 महीनों में योग के महत्व के लिए महत्व को बढ़ाने के लिए और योग को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हमारा मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल ये जो यूनिट है का जो किले धारूर कॉलेज में जो एक महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय के अंतर्गत हम अलग अलग प्रोग्राम सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मैं फिर एक बार संजीवनी देशमुख मैम और सुरेंद्र कुमार धिंगरा जी और उनके सभी भारतीय योग संस्थान के जो भी सदस्य आज उपलब्ध हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं हमारे कॉलेज के मिस्टर बावस्कर सर जी से गुजारिश करता हूं कि वे आभार प्रकट करें। सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ सर मैडम, सर वेळ संपत आलेला आहे। हाँ सर, है मैडम। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें यहाँ पर बुला के हमसे ये इतना अच्छा कार्य करवाया, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे से होगा, लेकिन मुझे विश्वास दिलाया हमारे आपके यहाँ के प्रोफेसर नवले सर जी और गायकवाड़ सर जी, जो आप प्रिंसिपल है, उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया और मैंने आप सबको जो भी शिक्षा दी है वह ऐसे ही आप करें और भारतीय योग संस्थान की एक केंद्र अपने कॉलेज में खोले, यही मैं आपसे विनती करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं प्रोफेसर बावस्कर सर जी से गुजारिश करता हूं कि वे इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। बावस्कर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय किले धारूर और अपने ही कॉलेज के एनसीसी विभाग आयोजित नेशनल वेबिनार इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इस विषय पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक भारती सर ने इस कार्यक्रम का
अध्यक्ष स्थान स्वीकारा और हमें संबोधित किया। इस वजह से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार को प्रमुख साधन हस्ती के तौर पर हमें जिन्होंने योग और प्राणायाम इन दोनों विषयों पर अपने अमूल्य विचार प्रकट किए और हमें योग और प्राणायाम इसका अपने जीवन में क्या महत्व है इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया। इस वजह से मैं श्रीमती संजीवनी देशमुख, सदस्य भारतीय योग संस्थान दिल्ली, उनका महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार में इन्होंने अपना सहभाग किया। ऐसे महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य मिस्टर एम ए जोगड़े सर, जूनियर के पर्यवेक्षक मिस्टर प्राध्यापक एस के काले सर, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस योग और प्राणायाम शिविर का आयोजन बावस्कर सर हमें जिन्होंने प्रदान किया, इस बहुमूल्य वैसे हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर एम एन गायकवाड़ सर, इनका भी मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में श्रीमती संजीवनी देशमुख, इनके मित्र सहयोगी जो इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, इनमें से श्रीमती हमें संबोधित किया। ऐसे सुरेंद्र धिंगरा सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेबिनार में सहभागी हमारे महाविद्यालय के सभी सहकारी मित्र, प्राध्यापक और विद्यार्थियों का, सभी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य, इनकी अनुमति से यह वेबिनार समाप्त हुआ, ऐसी घोषणा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धिंगरा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी से ज्यादा नाम से नहीं पहचानती, लेकिन प्रिंसिपल गायकवाड़ सर कल से मेरे साथ जुड़े हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, मुझे हर एक बात बताई, समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नवले सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझसे इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी से जुड़ाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।